Hello everyone, how are you? Yes, students. Earlier we studied about the basics of the chapter 2 relations and functions. Today we will be studying some more basics of relations and functions. If we talk of the relations, अगर हम डेली लाइफ में रिलेशन की बात करें तो रिलेशन इज़ बिटवीन ब्रदर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड सिस्टर, then day and night, again cup and saucers. That means कि जब भी रिलेशन की बात करें तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं. There are always two things in the relation. This is the talking of our surroundings, relation in our surroundings. But in maths, if we talk of relation, then the relation is the Cartesian product of two sets. Again there are two things. अभी हमने पीछे सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने सेट के बारे में पढ़ा था. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अब हम रिलेशन के बारे में तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? कार्टेशियन वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज देयर आर टू थिंग्स. Every time when we talk of relation there will be two sets and Cartesian product में भी दो सेट्स होंगे. क्यों दो सेट्स होंगे? क्योंकि उसके अंदर हमें दोनों सेट्स का एक एक एलिमेंट मिलेगा और वो जो दो एलिमेंट्स मिलेंगे उनको हम कार्टेशियन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग ए सेट A in which there are two elements red and blue. Okay, and there is another set B in which there are three objects, that is B, C and S. B represents bag, C represents coats and S represents shirts. Now there are two sets, and in first set there are two elements, in second set there are two elements. If we want to represent these two sets in Cartesian plane, for example I am drawing this Cartesian plane. This is y-axis and this is x-axis. We take this set A along x-axis, that is here is red and here is blue, and along x-axis we are representing these three objects, that is bag and coat, then shirt. If we want to find that how many total pair of this bag and coat and shirts will be form of these two colors, then we will be multiplying number of these on the Cartesian plane in x-axis and number of these objects on the y-axis. That means how many total pair will be there? 6. 2 multiply 3, that is 6. Now what is A cross B? If we want to write A cross B in the form of a set, then there will be elements red B, then red C, then red S, again blue B, blue C and blue S. That means Cartesian product can be represented again in the form of a set in which the elements are in pairs, and these pairs are one element is from set A and one element is from set B, and each element in this Cartesian product is known as ordered pair. Okay, this is the representation of Cartesian product of two sets. Again, if we want to discuss about the Cartesian product in detail, then there are some more things which are to be remembered. These things are: number one,
the number 1, the ordered pairs of the two sets having Cartesian product are always equal only when the corresponding elements in the ordered pair are equal. इसका मतलब क्या है? Suppose I am having a set A that is having 1, 2, okay, and another set I am having B that is having X and Y. If I find A cross B, Cartesian product of A and B, then this will be again a set that is 1x and 2y. Now if I say that these two ordered pairs are equal, for these two ordered pairs are to be equal, इन दोनों को इक्वल होने के लिए इनके एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए. दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू y एंड फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट. यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, बट अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे तो इसका फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर z ले लेती हूँ, सपोज 1 की जगह मैं z लेती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया z लिखा यहाँ. तो अगर मैं ये कहूँ कि 1x शुड बी इक्वल टू zy, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहला एलिमेंट जो है इस ऑर्डर पेयर का इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू z. और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि दूसरा एलिमेंट जो है वो इस ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू y. तो इसलिए ये बोला गया है कि द ऑर्डर पेयर ऑफ टू सेट्स हैविंग कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ऑलवेज इक्वल ओनली व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, सेट की बात नहीं कर रहे, ये तो सेट हैं, और इन दोनों सेट को मिला के हमने क्या बनाए, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए. कैसे बनाए? कार्टेशियन प्रोडक्ट से. और ये ऑर्डर्ड पेयर अगर हम चाहते हैं कि ये इक्वल हों तो उसके लिए इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका इक्वल होना ज़रूरी है. इसी तरह से इसका जो सेकेंड एलिमेंट है और इसका सेकेंड एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स किसके ले रहे हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर्स की. तो ये इक्वल होने ज़रूरी है. पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है. सेकेंड थिंग इज़, इफ़ देयर आर p एलिमेंट्स in set A and q elements are in set B, then there will be p into q elements in A cross B. That is, if NA is equal to P and NB is equal to Q, then NA cross B is equal to PQ. What does it mean? सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब है कि इफ़ p एलिमेंट्स आर इन सेट A, मान लो कि A सेट में p एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसको हमने p ले लिया. और सेट B में q एलिमेंट्स हैं, सेट B में q एलिमेंट्स हैं, तो उसमें भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं वो उसको हमने q ले लिया.
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जब हम दो सेट्स का ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स उसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर होंगे, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। मतलब कि उसके अंदर उन फर्स्ट ए सेट के एलिमेंट्स जितने हैं उसको बी सेट के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी आ जाएगा। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन ए, दैट मीन्स एन ए इज इक्वल टू 3 and how many elements are in B, and B is equal to 4. now how many elements are in A cross B, that means पहले हम A cross B फाइंड आउट करें और उसमें से हम देखें कि कितने एलिमेंट्स हैं। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा मेथड ये हो गया कि हम जितने NA है और जितना NB है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो NA cross B कितना होगा, दैट विल बी 1 9 1A 1 B 1 C 1 D, 1 के साथ ले लिया, अब 2 के साथ 2A 2 B 2 C 2 D, देन अब 3 के साथ लेते हैं 3A 3 B 3 C and 3 D. If we count all these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, और अगर हम इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तब भी 3 आता है। तो हमें अगर सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट का सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हम टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में निकाल सकते हैं। तो एन ए क्रॉस बी कितना हो गया यहाँ पर 12। अगर हम ये देखें 12, इसमें भी 12 एलिमेंट्स हैं और ये एन ए 3 है, एन बी 4 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 4 सेट्स हैं। तो हमारे सेकंड कंडीशन जो है इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज़ इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, non-empty sets, and one of them that means either A or B is infinite set, then A cross B is also infinite। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो दो सेट हैं जिनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है उसमें से या ए इनफाइनाइट सेट है या बी इनफाइनाइट सेट है, दोनों में से अगर एक भी इनफाइनाइट सेट है तो अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे दैट विल आल्सो बी इनफाइनाइट, दैट मीन्स उसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ टू रिमेंबर, दैट इज़ इफ़ आई एम हैविंग कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A equal to A B C is such that A B and C belong to A, then now what is here, there are 3 sets। वैसे तो एक ही सेट है लेकिन उसी एक सेट को हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी सेट के साथ 3 टाइम्स निकाला, दैट मीन्स A cross A एंड ए बी सी इज़ सच दैट ए बी सी बिलोंग टू ए, कि ए बी सी जो है वो ए को ही बिलोंग करते हैं। तो जो ए बी सी दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ए क्रॉस बी, उसमें हमारे जो प्रोडक्ट का सेट होता था उसके अंदर हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए, मतलब कि एक ए सेट का एलिमेंट लिया था और एक बी सेट का। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्योंकि 3 बार प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पर 3 बार सेम सेट का प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं ए बी एंड सी,
डिफरेंट सेट्स होंगे तो भी 3 सेट, अगर एक सेट का 3 टाइम्स निकालना है तो भी हम इसको 3 सेट मान के ही चलेंगे। तो दैट मीन्स हमने एक एलिमेंट इसका लेना होगा, एक इसका, एक इसका, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 3। दैट मीन्स ए बी सी जो है वो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे हम उसमें ए बी को क्या बोलते थे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें जो हैं, दीज ऑल द 4 थिंग्स आर टू बी रिमेंबर्ड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।